राज्य बाल विकास विभाग, बाल हक्क संरक्षण कायदा आणि युनिसेफच्या संयुक्त विद्यमानाने प्रोव्हिजन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्स ॲक्ट 2012 चे आयोजन करण्यात आले होते। या कार्यक्रमादरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य दंडाधिकारी जस्टिस पोहित शहा, जस्टिस VM कानडे, महाराष्ट्र सरकारच्या महिला आणि बालकल्याण विकास विभागाचे प्रधान सचिव उज्ज्वल उके आणि अन्य मान्यवर उपस्थित होते। त्याचप्रमाणे या कार्यक्रमाला प्रख्यात न्यायाधीश, वकील, पोलीस अधिकारी, त्याचप्रमाणे ज्युवेनाइल जस्टिस मंडळाचे सदस्य आणि महिला कल्याण समितीचे सदस्य उपस्थित होते, ज्यांनी झिरो टॉलरन्स अगेन्स्ट चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूजची घोषणा केली। उपस्थितांना संबोधित करताना न्यायाधीश VM कानडे यांनी चाइल्ड फ्रेंडली कोर्टची गरज व्यक्त करताना सांगितलं, And I would request my Lord the Honorable Chief Justice, if possible, to have separate court premises which are child friendly, where a child friendly atmosphere is kept, so that the children, when they go there, they are not afraid and they can give their evidence in a friendly atmosphere. So it is necessary for the prosecutors, for the police officers, for the judges to keep this angle in mind, that they are dealing with young children who have already suffered trauma, physical, mental, and it is necessary to bring them out of that trauma and at the same time to ensure that the perpetrators of the crime are brought to book. अतिसंवेदनशील प्रकरणाबद्दल बोलताना मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा यांनी सांगितले की काही गुन्हेगार हे कुटुंबातलेच असतात। The difference between the crimes against women and crimes against children and the other crimes is that most of the children who are victims of this crime are so traumatized that they are not even, the children, especially young girls, they are not even able to go home and tell their mother that what has happened. The child remains traumatized for 2 days, 3 days, week, and when the mother tries to find out what has happened, that very slowly and reluctantly the child will tell what has happened. And in the court, when the case will be argued, the accused lawyer will plead that look, the offence is alleged to have been taken place on 12th July, but see, FIR was not filed for 20 days. So it is that reason why we must appreciate the sensitivity with which these issues are required to be appreciated, because the victim may not be even able to speak. We know of cases where victim aged 2 years or 1.5 years are also sometimes assaulted. So the victim may be a toddler, a school girl or a teenage girl, and perpetrator of the offense is not a stereotype criminal or a gangster who looks like a villain. He may be sometimes a father, brother, uncle, family friend, neighbor, rickshaw driver, teacher in the school, sports teacher, or maybe even a godman. And when it comes to godman, it's not only in India that this happens, it happens abroad also. In fact, it has been publicly acknowledged by heads of some institutions that this unfortunate things like child sexual abuses take place. बालकांवर होणाऱ्या लैंगिक अपराधांची जी प्रकरणं अजून प्रलंबित आहे त्याचा उल्लेखही त्यांनी उपस्थितांसमोर मांडला। In Mumbai itself, under the new act, within 1 year, more than 200 cases were registered, and I'm told that out of more than 3,000 cases, today also there are 2,900 cases still pending, and out of about 300 and out of 198 cases which have been disposed of in the last 2 years, the convictions are only in 34 cases. पत्रकारांशी बोलताना महिला आणि बालकल्याण विभागाचे प्रधान सचिव उज्ज्वल उके यांनी सांगितले की राज्य सरकारने ही घोषणा केली आहे की मुलांवर होणाऱ्या अत्याचाराविरुद्ध झिरो टॉलरन्सची घोषणा केली जाईल।
या कार्यक्रमादरम्यान जे काही सल्ले येतील त्याचं परावर्तन ॲक्शन प्लॅनमध्ये केलं जाईल असेही ते म्हणाले। जो सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, इसमें हमने सब स्टेक होल्डर्स को लिया है, जैसे पुलिस, प्रोसिक्यूशन, हेल्थ डिपार्टमेंट, जुडिशरी, मैजिस्ट्रेट्स, ये सारे जो अलग अलग पहलू होते हैं एक किसी केस के। बच्चे के ऊपर अगर कोई लैंगिक अत्याचार होता है तो उस बच्चे को कैसे सपोर्ट करना है, फिर पुलिस ने उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसी करनी है, उसके बारे में जो पॉक्सो एक्ट है उसमें बहुत विस्तृत तरीके से लिखा गया है। लेकिन 1 साल 1.5 साल के बाद में हम ये देखना चाहते हैं कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कहाँ हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, जहाँ बेहतरी की जा सकती है, क्योंकि कोई भी एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में अनेक तरीके की कठिनाइयाँ अनेक स्टेक होल्डर को आती हैं। हो सकता है पुलिस को कोई अड़चन आती होगी, हो सकता है हेल्थ डिपार्टमेंट को, हो सकता है कि प्रोसिक्यूशन में कोई प्रॉब्लम हो, फोरेंसिक में हो, तो वो सबको एक छत के नीचे ला करके ये 1.5 दिन हम आपस में बात करेंगे कि कौन से केस में क्या हुआ, कहाँ इसको इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, ताकि ये महाराष्ट्र की तरफ से हम एक राज्य की तरफ से एक संदेशा देना चाहते हैं कि महाराष्ट्र शासन और जुडिशरी ये दोनों का एक मत होकर के एक ही हमें कहना है कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज जो है, बच्चों का जो लैंगिक अत्याचार है, इसके लिए हमारे राज्य में 0 टॉलरेंस है। ब्युरो रिपोर्ट NMTV बातमीपत्र।